Hello students, my name is Shazia Khan. Today's subject is Geography, Standard 8th, Chapter number 5, Ocean Current. Students, this is the remaining part of this chapter. Okay, Geographical explanation. The ocean water can be divided into two parts based on depth, surface water and deep water. Students, ocean current is divided into two types. Okay, two parts you can say. The first one is depth or second one is deep. Okay, upper first is upper layer extend up to 500 meters from sea level. 500 मीटर्स जो है वो क्या है, डेप्थ डीप है, ठीक है। और बिलो द 500 मीटर डेप्थ है, ठीक है। द रीजन फ्रॉम सी लेवल टू द डेप्थ ऑफ 500 मीटर, 500 मीटर तक सरफेस से ओशन में 500 मीटर तक जो है उसे डीप बोलते हैं, ठीक है। द is considered to be surface water. Sunlight can reach till this depth. अब जो 500 मीटर तक जो है सरफेस से ओशन, उसमें सनलाइट पहुंचती है, ठीक है। जो बिलो द 500 है वहाँ पर सनलाइट नहीं पहुंचती है, ठीक है। द मूवमेंट्स इन दिस लेयर occur mainly due to difference in temperature and salinity. The planetary winds give speed to the ocean current. अब द मूवमेंट्स ऑफ लेयर मेनली ड्यू टू द डिफरेंट टेम्परेचर। अब जैसे जैसे डीप ओशन में आप जाओगे टेम्परेचर्स भी क्या होगा, चेंज होगा वाटर का, ठीक है। सलाइन वाटर मिलेगा आपको, ठीक है। और विंड की जो है स्पीड भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ओशन करंट में जो है उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है जैसे जैसे आप डीप में जाओगे तो, ठीक है। नाउ हाउ ओशन करंट्स मूव। तो ओशन करंट्स इज मूविंग फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल। ओके, हॉरिजॉन्टल ओशन करंट, द फ्लो ऑन द surface of ocean moves only 10% of oceanic water. The surface flow is considered up to 5 meters of depth. The discharge of water in the ocean is measured is Severdum unit. It is a equivalent to 1 million cubic meter second discharge. The horizontal flow of ocean water occur as warm and cold current. This current flow from equator to pole and from pole to equator. These currents push to long distance by the planetary wind. As a result, the ocean water flow from equator to both pole and vice versa. You have studied the map given in the figure. Horizontal ocean currents में क्या होता है, warm water and cold water जो है मिक्स होते हैं। दिस ओशन करंट्स पुश, ये जो ओशन करंट्स होते हैं वो इक्वेटर तक पहुंचते हैं, इक्वेटर से पोल तक, ठीक है। पोल टू इक्वेटर, इक्वेटर टू पोल, समझ में आया। तो ये इक्वेटर तक पहुंचते हैं और दिस करंट्स आर पुश्ड टू लॉन्ग डिस्टेंस। अब ये जो है हवा की तेज़ी की वजह से ये बहुत ही दूर करते हैं, जिसकी वजह से जो बोथ पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये ओशन करंट की स्पीड की इतनी स्पीड होती है कि ये कहाँ तक पहुँचते हैं, पोल तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है वहाँ तक इक्वेटर से पहुँचते हैं, ठीक है। यू हैव स्टडी, अभी आप लोगों को मैप में दिया है 5.4 में। आप लोग देखो कैसे इक्वेटर से पुश होकर ओशन करंट जो है पोल तक रीच करता है, ठीक है। Now see students figure 5.4. As you can see, there are 7 continents in the map, right? In the central line, this is the equator. Okay. Now see students, red line is showing warm ocean currents and the blue line is showing
कोल्ड ओशन करेंट्स, ठीक है। तो हाउ इट्स मूविंग फ्रॉम clockwise or anti-clockwise, right? Clockwise, normally we can see in the clock how clock is moving, and anti-clock how it's रिवाइजिंग, मतलब कैसे वो एंटी क्लॉकवाइज रिवर्ट हो रही है, ठीक है। दिस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स हैपन इन द ओशन करेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट इज geographical explanation. We have studied that ocean currents are formed due to difference in temperature. ओशन करेंट्स क्यों होता है? तो ड्यू टू द टेम्परेचर, डेंसिटी एंड प्लानिटरी विंड, हवा की दबाव की वजह से, स्पीड की वजह से और टेम्परेचर की वजह से। इन एडिशन द फॉलोइंग रीज़न आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ओशन करंट एंड देयर वेलोसिटी. Why some reasons are responsible for the ocean currents? Okay students, due to the rotation of the earth, these ocean currents happen. Okay, because of rotation of the earth, the ocean current move in clockwise direction in the northern hemisphere and in the anti-clockwise direction in the southern hemisphere. जो ओशन करंट है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज मूव होता है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट ऑफ कोस्टलाइन द डायरेक्शन ऑफ द ओशन करंट चेंजेस. द वेलोसिटी ऑफ ओशन करंट इज अराउंड 2 to 10 किलोमीटर पर आवर. The ocean currents are divided into two types, cold currents and warm currents. The velocity, the speed of ocean current is 2 to 10 kilometer per hour, students. Okay, due to the rotation of earth, these changes happen. Okay students. Effects of ocean surface currents on human life. How ocean currents affects on human life, that we will see in this paragraph. Okay, ocean currents specially affect the climate of regions having a proximity to sea. In cold region where warm ocean current flow, climate become warmer. As we can experience in the cold climate, sometimes we also experience that in cold region warm air is blowing, right? So why this happen? Because of the ocean's current. Okay, in some regions the amount of precipitation increase. For example, the warm ocean currents flowing near western Europe, southern Alaska and Japanese coast reduce the intensity of winter there and make them warmer. अब ठंडी के सीज़न में अगर वार्म एयर्स जो है दूसरी जगह से पास होकर आ रही है तो वो क्या करती है, कोल्ड रीजन को भी वार्म कर देती है, ठीक है। क्लाइमेट अगर कोल्ड होगा तो भी उस एयर की वजह से कैसा हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, ठीक है। एज अ रिज़ल्ट दिस स्पोर्ट्स डू नॉट फ्रीज इन विंटर. इसी वजह से विंटर में भी हमें कभी कभी वार्म फीलिंग आती है ना, गर्मी वाली फीलिंग आती है, राइट। विथ रिस्पेक्ट टू द वाटर ट्रांसपोर्ट टू द ओशन करेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. If the transportation done according to the flow of ocean current, the speed of ships increase and fuel is saved too. जो ओशन करंट्स है वो हेल्पफुल होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी होता है. ट्रांसपोर्टेशन जो है, जो भी ट्रांसपोर्ट बाय सी होता है, सी रोड होता है, शिपिंग के थ्रू होता है, उसमें ओशन करेंट्स के थ्रू जो भी मूवमेंट्स होते हैं सी में, उसके थ्रू क्या होती है, शिप ऑटोमेटिकली जो है वो पास होती है आगे, जिसकी वजह से फ्यूल जो है वो कम यूज़ होता है, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छा है, ठीक है।
ट्रांसपोर्टेशन के लिए वे बहुत हेल्पफुल है ओशन करंट। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? नाउ डीप ओशन करंट जो 500 के बियॉन्ड का एरिया है वो डीप ओशन में आएगा, जहाँ तक सनराइज़ जो सन की जो लाइट है वो पहुँच नहीं पाती है, ठीक है, वो एकदम डेप्थ एरिया है। वाटर करेंट्स बियॉन्ड द डेप्थ ऑफ 500 meters आर नॉन एज डेप्थ डीप वाटर ओशन currents. This current also are formed due to differences in temperature and density of water in the different part of the ocean. जो अलग अलग जो है ओशंस में अलग अलग डेंसिटी होती है वाटर की, ठीक है, टेम्परेचर भी के अलग अलग होता है। दिस इज़ नॉन एज थर्मोलाइन सर्कुलेशन। इस सर्कुलेशन को, इस मूवमेंट्स को क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं थर्मोलाइन सर्कुलेशन। दिस आप देख रहे होगे ऊपर फिगर 5.6 में जो सी वाटर है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है इंटरनली, ठीक है। दिस करंट फ्लो टिल द सी बेड ऑफ द ओशन, दे फ्लो लाइक रिवर कंटिन्यूसली बिलो द surface of the sea, as you can see in the figure 5.6. Okay students, the differences in temperature of various part of ocean in the major reasons behind the deep ocean sea currents. हर ओशन करंट्स का जो है टेम्परेचर अलग होता है, यही एक मेन रीज़न भी हो सकता है ओशन करंट्स का, ठीक है। वार्म वाटर हैज़ लोअर सैलिनिटी एंड डेंसिटी, सच वाटर कम्स टू द सरफेस ऑफ द सी। देखो, जब समुद्र का पानी बाहर आता है तो वो क्या करता है, वार्मनेस जो है अर्थ की वो अंदर लेकर जाता है सी में, ठीक है। तो वो जो सी का वाटर होता है वो कोल्ड वार्म हो जाता है, ठीक है। सच वाटर कम टू द सरफेस ऑफ सी, कोल्ड वाटर विथ हाई डेंसिटी गोज़ डाउन। ठंडा पानी जो है वो अर्थ के सरफेस पे आता है और वो वार्म हो जाता है, ठीक है। दिस मूवमेंट कॉजेज द डीप सी सरफेस वाटर नियर ग्रीनलैंड एंड यूरोप moves to more depth. This water moves to the Antarctica at this depth. Later, the water moves to the surface. The redistributions of ocean water keeps occurring. This redistribution takes around 500 years to complete. These types of movement is also known as conveyor belt. Student, these changes happen regularly in the sea due to the temperatures. Okay, I hope you all understood this chapter. If you have any doubt, any query, students, you all can ask me. Thank you.